आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ाऊँगी और इसमें यूनिट सेकंड थ्योरीज ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड देयर सिग्निफिकेंस यूनिट सेकंड है, जिसका टॉपिक सेकंड पॉइंट है पियाजेट कॉग्निटिव थ्योरी। आज मैं आपको पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ाने जा रही हूँ। पियाजे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। पियाजे 1896 को इनका जन्म हुआ था और 1980 को इनकी मृत्यु हुई थी। स्विस साइकोलॉजिस्ट वर्कड फॉर सेवरल decades on understanding children's cognitive development. Most widely known theory of cognitive development was interviewed by kids' thought and behavior and worked to understand their cognitive development. पियाजे, जिनको संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिक कार्य किया है और इन्होंने बच्चों के ऊपर अपना सारा प्रैक्टिकल किया। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को जाना, इसमें बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं उन्होंने बताया और उनकी समझ क्या होती है ये इस थ्योरी में बताया गया है। पियाजे बैकग्राउंड। यंग पियाजे वाज इनक्रेडिबली प्रिकॉशियस, पब्लिश्ड फर्स्ट पेपर एट 10। उन्होंने 10 पेपर पब्लिश किए और उनकी कुछ बुक्स हैं जो पब्लिश्ड हुई हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। फर्स्ट, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। सेकंड, जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड। थर्ड, द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ साइकोलॉजिकल वर्ड। फोर्थ, द मॉरल जजमेंट of the child, the origin and intelligence in the child. 6, the child conception of numbers. 7, the child conceptions of time. 8, the child conception of space. 9, the psychology of intelligence. 10, logic and psychology. 11, the early growth of logic in the child. 12, the mechanism of perceptions. 13, the psychology of the child. 14, science of education and the psychology of the child. 15, the grace of consciousness. Wrote on molluscs. Based on these writing was asked to be curator of molluscs at a museum in Geneva. He declined in order to finish secondary school. Earned his doctorate in natural sciences at 21. Began to study psychology, apply intelligence test to school children. उन्होंने साइकोलॉजी में स्टडी की और बच्चों के ऊपर इंटेलिजेंट टेस्ट को अप्लाई यानी कि प्रयोग करके देखा। Constructivism assumes the learning is an active process of constructions rather than a passive assimilation of information or rote memorization. Credited for founding constructivism, he had a large influence on American schools. Piaget and constructivism. Best known for idea that individuals construct their understanding, that learning in a constructive process. इन्होंने जो भी आइडिया दिए, इंडिविजुअल टेस्ट किए, वो सब कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस की बेस पर किए। एक्टिव लर्निंग एज opposed to simply absorbing info from a teacher, books, etc. The child is seen as a little scientist, constructing understanding of the world largely alone.
Piaget and constructivism. Believed all learning is constructed, whether it is something we are taught or something we learn on our own. Whether or not we are taught in a constructivist manner, Piaget believed we are constructing knowledge in all our learning. Piaget and learning. Two men state equilibrium and disequilibrium. Believe that we are driven or motivated to learn when we are in disequilibrium. We want to understand things. Equilibrium means साम्य धारण. साम्य धारण का संप्रत्यय अनुकूलन के संप्रत्यय से मिलता जुलता है. साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण, एसिमिलेशन तथा समायोजन, एडेप्टेशन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है. इस तरह से इक्विलिब्रियम एक तरह के सेल्फ रेगुलेटरी प्रक्रिया है. पियाजे का कहना था कि जब बालक के सामने ऐसी परिस्थिति या समस्या आती है जिसका उसे कभी अनुभव नहीं था, तो इसमें एक तरह का कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम उत्पन्न होता है, जिसे दूर करने के लिए, बैलेंस लाने के लिए वह आत्मसातकरण या समायोजन या दोनों ही प्रक्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है. नेक्स्ट, पियाजे एंड लर्निंग. इक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. वी एडजस्ट अवर आइडियाज टू मेक सेंस और रिलेटिविटी. एसिमिलेशन. व्हाट इज एसिमिलेशन? Assimilation, process of matching external reality to an existing cognitive structure. Accommodation, when there is an inconsistency between the learner's cognitive structure and the things being learned, the child will recognize her thought. इट मीन्स अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन, इक्विलिब्रियम या बैलेंस स्थापित करता है. अनुकूलन के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं आत्मसातकरण, एसिमिलेशन तथा समाविष्टीकरण, एकोमोडेशन संपन्न हो सकती हैं. आत्मसातीकरण से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान भौतिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से है, जबकि समाविष्टीकरण से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि में पूर्ववर्ती भौतिक संरचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने से है. मतलब आत्मसातीकरण जो होता है वो जो पूर्व में हुए अनुभव हैं तो उसको देखता है, और समाविष्टीकरण में जो पूर्व में जो उनमें जो परिवर्तन हुआ है वो उसके अंतर्गत उसको अंतर करना सीख जाता है. जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बताते हैं. माना कि 2 वर्ष का कोई बालक जब प्रथम बार किसी सफ़ेद कुत्ते को देखता है तब वह प्रश्न करता है कि वह क्या है. माता पिता उसे बताते हैं कि यह कुत्ता है. बालक उस कुत्ते को ध्यान से देखता है और जान जाता है कि कुत्ते की 2 आँखें, 2 कान, 1 मुंह, 1 पूँछ, 4 पैर होते हैं तथा सफ़ेद रंग का होता है. और कुछ दिन बाद वह बालक बकरी के बच्चे को अपने सम्मुख देखता है तो देखता है कि ये भी सफ़ेद रंग की है, इसके भी 2 आँखें, 2 कान, 1 मुँह व 4 पैर हैं. वह सोचता है कि ये कुत्ता है. ये बालक का आत्मसातीकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि बालक बकरी में कुत्ते जैसे गुण देख रहा है, इसलिए उसे बकरी कुत्ते के समान प्रतीत हो रही है. इस स्थिति में वह कुत्ते के अपने पूर्व संप्रत्यय का बकरी से मिलान कर रहा है तथा बकरी के कुत्ते के भिन्न गुणों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. और जब बालक पहले से ज्ञात बात में कोई नवीन बात जोड़ता है या अंतर करना सीख जाता है तो उसे समाविष्टीकरण कहते हैं. समाविष्टीकरण मीन्स एकोमोडेशन. यदि कोई बालक जानता है कि कुत्ते की 2 आँखें होती हैं, 2 कान, 1 सिर, 1 मुंह, 4 पैर, 1 पूँछ होती है, यदि अब वह सीखता है कि कुत्ता भौंकता है तो उसमें उसके पूर्ववर्ती ज्ञान में एक नवीन बात जुड़ जाएगी.
जैसे जैसे पुरानी बातों में नई बातें जुड़ती जाती हैं, वैसे वैसे कुत्ते से संबंधित उसका संप्रति परिपक्व हो जाएगा। इस प्रकार जब बालक कुत्ते तथा बकरी बनता सीख जाएगा तो ये समष्टीकरण होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म, लर्निंग एंड एजुकेशन। नॉट interested in applying his theory to school based on education, he called his American question. Constructivism educator create an environment which encourages children to construct their own knowledge. But according to Piaget, we construct our learning regardless of how it is presented. Piaget's stages of cognitive development. A child's capacity to understand certain concepts is based on the child's development stages. Piaget जो हैं उनकी 4 stages हैं. Believed that all children develop according to 4 stages based on how they see the world. He thought the age may vary somewhat, that we all go through these stages in the same order. प्याजे की जो 4 स्टेज हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, सेंसरी मोटर स्टेज जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। सेकंड, प्री ऑपरेशन स्टेज जो 2 से 4 वर्ष तक होती है। थर्ड, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। एंड फोर्थ, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो कि 12 से 15 वर्ष तक होती है। फर्स्ट, सेंसरी मोटर स्टेज। But to above 2 years, rapid change is seen throughout. The child will explore the world through sense and motor activity. Early on, baby can't tell difference between themselves and the environment. जो बच्चा होता है वो environment और अपने बीच में अंतर नहीं कर पाता है। If they can't see something, then it does not exist. Beginning to understand cause and effect can later follow with their eyes. जो ये फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें इस अवस्था में बालक देखने, पहुँचने, पकड़ने, चूसने आदि की सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासित क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है। और जन्म के समय बालक में देखने, छूने, पकड़ने तथा चूसने की क्षमताएं उत्पन्न होती हैं, परंतु धीरे धीरे इन क्षमताओं पर आधारित उसकी स्वतः सहज क्रियाएँ अधिक प्रभावशाली तथा संगठित होती जाती हैं और फर्स्ट स्टेज में ही वस्तु स्थायित्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। सेकंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज अबाउट 2 to about 7। बेटर स्पीच कम्युनिकेशन, इसका कम्युनिकेशन स्पीच अच्छी हो जाती है। कैन इमेजिन द फ्यूचर एंड रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट, और वो कल्पना करना सीख जाता है। डेवलप बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, उसमें बौद्धिक संरचना उत्पन्न हो जाती हैं। स्टिल प्रेटी egocentric but learning to be able to delay gratification, can't understand conversation of matter, संरक्षण को समझ नहीं पाता है। his difficulty distinguishing fantasy from reality, एग्जाम्पल कार्टून करेक्टर आर रियल प्यूपिल, और जो कार्टून करेक्टर होते हैं उसको वो रियल प्यूपिल समझने लगता है। इस स्टेज में क्या होता है कि बालक विभिन्न घटनाओं या कार्यों के संबंध में क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर जानने में रुचि रखता है। वे जिस भी कार्य को अन्य से द्वारा करते हैं या होते हुए दिखता है उसी को सही समझने लगता है। उनमें बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे वे लड़का अपने बड़े भाई या पिता की तरह किताबें, समाचार पत्र को पढ़ने तथा लड़कियां अपनी माँ की तरह खाना बनाने, सफाई करने जैसे कार्य को करने लगती हैं। उसमें इस स्टेज में तार्किक विचार प्रक्रिया, किसी वस्तु या बात मस्तिष्क को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि
यदि समान लंबाई की दो छड़ों को एक दूसरे के समांतर रखकर 4 वर्ष के बालक से पूछा जाता है कि कौन सी छड़ी अधिक लंबी है, तो बालक का उत्तर होगा कि दोनों छड़ी बराबर लंबाई की हैं। अब यदि बालक को देखते हुए उसमें एक छड़ी को कुछ खिसका दिया जाए तो उसे पुनः वही प्रश्न किया जाए तो अधिकतर बालक उनमें से एक छड़ी को दूसरी से अधिक लंबी बताते हैं। मोर ऑपरेशनल conservation of matter, understanding that something does not change even though it looks different shape, it's not related to quantity. Example, are 10 coins set in a long line more than 10 coins in a pile? Next example, is there less water if it is poured into a bigger container? Third stage, concrete operational stage, from about 7 to about 11. Abstract reasoning ability and ability to generalize from the concrete increase, understands conservation of matter. मूर्त संक्रिय अवस्था लगभग 7 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में पूर्व संक्रांत अवस्था का अतार्किक चिंतन संक्रांत तार्किक विचारों का स्थान ले लेता है। मूर्त संक्रिय अवस्था के दौरान बालक में 3 गुण मानसिक योग्यता में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेते हैं। 3 योग्यताएं विचारों का विलोमीयता, डिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, कंजर्वेशन तथा क्रमबद्धता व पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग, यूज ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग एंड पार्ट होल कंसेप्ट हैं। इस अवस्था में विचारों की विलोमीयता का बालक में निपुण हो जाता है। एंड लास्ट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फ्रॉम अबाउट 12 to about 15. Be able to think about hypothetical situations, form and test hypotheses, organize information, reason scientifically. इस स्टेज में बालक में सोचने समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। वह पूर्ण तरह से सेल्फ डिपेंड बन जाता है। वो अपने आप किसी भी चीज़ की वो कल्पना कर सकता है और अपनी सूचनाओं को भी आदान प्रदान कर सकता है। औपचारिक अवस्था में बालक का कुल बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध हो जाता है। इस अवस्था में बालक एक साथ अधिक से अधिक तथ्यों को समझने तथा अधिक दृष्टिकोणों को अपनी विचार प्रक्रिया में स्थान देने के योग्य हो जाते हैं। वे अपने बारे में भी विचार करते हैं, इसलिए प्राय वे स्वआलोचक बन जाते हैं। पियाजे डेवलपमेंट, पियाजे का विकास। डेवलपमेंट हैपन्स फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। जो पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, 1 स्टेज से लेकर 4th स्टेज तक, वो उसमें क्या आपस में इंटरेक्शन होता है और पर्यावरण में क्या होता है बताया गया है। चेंज फ्रॉम स्टेज टू स्टेज में ओक्यूर एवरेटली एंड किड्स विल डिफर इन हाउ लॉन्ग दे आर इन ईच स्टेज। इस पियाजे की स्टेज में 1st स्टेज से 4th स्टेज तक बताया गया है कि बच्चा किस प्रकार ग्रोथ करता है और उसमें किस प्रकार के व्यवहार में नई नई बौद्धिक क्षमता का विकास होता चला जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैन ओनली हैपन आफ्टर जेनेटिकली कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल ग्रोथ ऑक्यूर्स। पियाजे डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग। ड्राइव फॉर डेवलपमेंट इज इंटरनल। The child can only learn certain things when she is at the right developmental stage. Environmental factor can influence but not direct development. Development will happen naturally through regular interaction with social environment. Piaget and education. Piaget did not think it was possible to hurry along or skip stage through education.
Regardless, many American schools will try to teach to the stage in an attempt to accelerate development. And last, problems with Piaget theory. Children often grasp ideas earlier than what Piaget found. Cognitive development across domains is inconstant. Studies have some shown that development can to some degree be accelerated.